we are going to decode the nature. To decode the nature, we have two options. Either we play a game or just listen to the explanation. What would you prefer? I want to play a game. Okay. So this is the marble that we have to take out from this end, and in between there can be some questions. Well, I will ask that, and if you are able to answer them well and good, and if you are not able to answer, we'll just explain. Okay. So let us start. Okay. Here comes the first question. While looking at this chart, what similarity or what common design do you observe in the picture? Venn diagrams. You mean circular patterns, right? Circular Yeah. pattern. These are spirals, known as Fibonacci spirals. But are these spirals same? And why they are present in every aspect of nature? Let us decode the nature. Now here's the question number 2. By observing this pyramid and this sequence, what pattern do you observe? How can you predict the next term? 4 plus 6. Okay. The next term will be the sum of preceding two, like 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 3 plus 5, 8, and so on. This is called the Fibonacci sequence. It starts from 0 and ends at infinity. And when I take the ratio of two consecutive terms of this sequence, the answer will be approximately 1.61, which is the golden ratio, denoted by Greek letters P or phi, PHI. Moving further in the game, I would like to ask you another question. Okay. Do you know that this ratio is present in your body? What? Do you know that this ratio is present in your body? Actually, I don't know. My friends here will explain. Take a look at my hand, the wrist. I have 5 fingers. Each finger is divided into 3 parts. Now, if I divide 3 by 5, I'll get the same ratio, which is the golden ratio, 1.618. This ratio is also present in our nature. If you take a look at the flowers, there are certain number of petals like 3, 5, 13 and 21. Same can be said about animals who have a similar spiral shape. Even my ears. Even the galaxies are spiral shaped. And this golden ratio is used in various types of fields like architecture, painting, graphic designing, and many more. Can you give me another example of this ratio in our body? Oh, sure, I will do that. Fingers and here. Another one? That I should explain. Yes. The length between your shoulders divided by the length of your face is also in golden ratio. This Yes. Yes. This distance upon your distance of face. your head. Yes. From here to here. Yes. It will also come golden ratio. Yes. Also, Mathematically, we can measure if we are beautiful or not. Mathematically. Can you tell me how? We can, this same can be said about our hands. If we measure the length of our wrist and divided by the length of our Just elbow, give me my number. okay. Can I measure? Yeah, of course. This 32 and this is 20. So that would be 1 point. You can use 1 mobile. point. Sure. That would be approximately the golden ratio. Approximately. By 0.6 it is not. So, moving ahead in the game, I would like to say that your total height upon the distance between navel point to the feet is also in golden ratio. That is very fascinating and interesting, no? Yeah. Who find out this golden ratio? Leonardo of Paris. His name is Fibonacci. In West it was discovered in 1202 and in India it was discovered 5000 years before. Earlier It was than mentioned- Western country. Yes. It was mentioned in the Rig Veda and moving ahead. So, golden ratio was also used in building the ancient architecture before it was discovered. For example, pyramid. This is the resemblance of pyramid of Giza. The slant height, the ratio of the slant height of the pyramid of Giza upon the length of the half of the base is also in golden ratio. It is approximately 1.61818. And we are on the final stage of the game where we learn an application of this Fibonacci spiral. So This is the basically, minute hand. This is the hour spiral.
So when this clock moves, it goes. The spiral goes towards upwards when on the starting 6 hours of the day, but then it comes towards downwards because this is a property of Fibonacci spiral. And if you wonder how this spiral is formed, when I take two consecutive Fibonacci terms, for example 55 and 34, I plot them on a rectangle. For example, 55 centimeters is the length of the rectangle and 34 centimeters is the breadth of the rectangle. I can make simultaneously many squares in this rectangle. 34 centimeter 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1, 1. These are Fibonacci terms. And then I'll make arcs in this square. For example, from here to here, here to here, here to here. And this is how we get the Fibonacci spiral. And by the way, congratulations. Scientists took 500 years to discover this, and you just took only 5 years to learn. Thank you. Thank you very much. Mosquito-borne diseases around us. Mosquito-borne diseases around us. So what? So basically, I would like to talk something about our project. So this is the city area, which is a public area like the garden, the playground, the railway system. Now I would like to talk about us citizens. What we do, we throw away our garbage. Like if we have black, we throw it down anywhere, and sometimes it gets accumulated a lot. So mosquitoes lay their eggs, right? Then now coming to the second point, we have the sewage system where all the gutter water and sewage of the city gets collected here. This is an additional unit. And thirdly, this also helps mosquitoes lay their eggs because it's favorable environment for mosquitoes. And thirdly, we have the dumping ground where most of the waste of the city is collected. So what does this do? This helps mosquitoes breathe and lay their eggs in these places as they love to lay their eggs avoid these dirty places. So what we thought, if we want to prevent this from happening, we would add a mosquito mesh over the entire area and cover it even the sewage. Yes. Even the gutter is a place where the sewage, and we cover that also with a mosquito mesh, even the dustbin. So that the mosquitoes will enter, they can't access the waste and they can't lay their eggs. And what even ties the mosquito mesh so tightly that even the smallest mosquito can't enter. Then second, what we use insect foggers. So what do insect foggers do? They release smoke-containing insecticide in the atmosphere that target and kill the adult mosquitoes. Now people say, oh, they're releasing smoke, insecticide, smoke. So now we're talking about insect foggers. So what they do? They're machines that release smoke-containing insecticides in the atmosphere that target and kill adult mosquitoes. Now what people think? Oh, it's an insect fogger. Chemical pesticides should be harmful for the environment, harmful for the human, but no. We'll be using eco-friendly pesticides that don't harm the environment and are also safe for humans. Now what we'll be doing is we'll be strategically placing these machines in areas prone to mosquito activity so that the mosquito population is suppressed. And also this machine we started just twice a month on a regular basis. Now after all this, the benefits are that firstly, the mosquito population reduces. As a result, the disease transmission reduces. Then there is minimum need of expensive chemical pesticides that will have detrimental effects on the environment. Lastly, it creates a cleaner, safer and healthier environment for all, improving the overall waste management system and also the land because they are exposed to lesser than so that's what the main motive of our project is to get rid of vector-borne diseases and see that we create a safer environment for everyone to live. And as citizens of us, our part, do our part, we need to see that we don't throw waste out, we see that whatever standard model is get rid of that and it does not help us to that. Our project is to see that we reduce vector-borne diseases and make it better for everybody. Your wife should be kept here. Good morning, sir. Very good morning. I call it as as a human, we are part of this activities and so what is there we get things individually money to create a better environment. So our project is about the same and we will do such things it will go further extent and again Different kinds of pollution, like air pollution, water pollution.
can just instead of using the exhaust which are used in cars, we can use that biogas. For generation of electricity or any power, we can use wind energy and solar. As human beings, we have the responsibility to maintain our ecosystem. That is what I can ask you. Yes, you can. Thank you. नमस्कार दोस्तों, ये प्रोजेक्ट का नाम है वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण रोकने के लिए उपाय, आइडियाज़ और वेज टू मिनिमाइज वाटर पोल्यूशन के बारे में है। जब आगे नीचे जा रहा था तो एक लड़की वॉलंटियर से बोल के उसके हाथ में क्या है अरे वो मैंने उसको बोला इस प्रोजेक्ट का नाम है विद्युत ऊर्जा निर्मिति अपकारी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इस प्रोजेक्ट का नाम है बिल्डिंग अ बेटर ब्रेन विथ हेल्थी बॉडी, हेल्थ पैराडॉक्स। ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है हाउ टू बिल्ड हेल्थी बॉडी। तो न्यूट्रिशन के बारे में है और डिसीज़ेस के बारे में है। इधर इन्होंने किया है स्ट्रेस के बॉस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसा बहुत सारे लाइफस्टाइल और डिसीज़ेस के बारे में इन्होंने इधर दिया है। यू कैन चेक हियर न्यूट्रिशन फैक्ट्स, हाउ टू रीड अ फूड लेबल। इस स्टूडेंट ने बनाया इधर फूड पिरामिड, वेट लॉस करना है तो कौन कौन सा फूड खाना चाहिए इधर इन्होंने दिया है। इसमें आता है टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स आता है, उसके बाद आता है हार्ट डिसीजेस रोकने के लिए कौन सा फल और फूड खाना चाहिए, ये भी इन्होंने इस पिरामिड के ऊपर दिया है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, आप देख सकते हैं इधर। कीप स्माइलिंग, how to maintain a good health, physical exercise, we have to do the physical exercise, be social as much as possible, maintain mental health, power of pause, समृद्ध जीवन सुलभ यात्रा। ओके, सोलर पैनल का उपयोग, सोलर एनर्जी पर चलने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस बनाया। अच्छा, My name is Rani. My name is Chandra Rajesh Jaiswal. My project shows transportation and communication. The topic is this life is a हमारा प्रकल्प ऊर्जा का वह स्रोत है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर आधारित है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है, न से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा का एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण किया जा सकता है। आप सब जानते होंगे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यातायात हो रहे हैं, जिससे हमारे भारत की जो संपत्ति है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब बिल्कुल खत्म हो चुका है और वो यूज़ करते हैं तो उससे प्रदूषण भी होता है। इसलिए हमने सोलर पैनल का उपयोग करने से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। उससे हम मेट्रो, घर के कोई भी काम, इलेक्ट्रिक गाड़ी और सब चीज़ चला सकते हैं, जिससे कि कोई भी प्रदूषण नहीं होगा। और एक बार हम सोलर पैनल का उपयोग करेंगे तो
उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं और ये हमें कम पैसे में उपयोग मिल सकता है और ये डायरेक्टली सूर्य से प्राप्त हो सकता है और इससे बहुत लोगों को नौकरी भी मिल सकती है। इससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो भी कम आएगा। नवीकरण संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा सोर्स, क्लीन एनर्जी रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इंडिपेंडेंट एनर्जी जनरेशन, लॉन्ग टर्म एनर्जी, जॉब अपॉर्चुनिटी, यूजिंग सोलर एनर्जी इन वेरियस एप्लीकेशंस. व्हेरी गुड. प्रकल्पाचे नाव सेंद्रिय खते. आप किस में बोलेंगे, मराठी या हिंदी? मराठीत चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग बोलते हैं ना इनको. ओके, आप थोड़ा वीडियो बनवा सकते हैं. आमच्या प्रकल्पाचे नाव आहे सेंद्रिय खते. आज आपण सर्वजण आधुनिक जगात जगतो. प्राणी संख्या आणि अन्नधान्याच्या ज्या उत्पादन त्याच्यामध्ये घटत चालले सर्व शेतकरी काय विचार करतात की आपण रासायनिक खत वापरून कमी जागेमध्ये जास्त मिळालं मग आपल्या शरीरासाठी खूप हानिकारक आहे. म्हणून रासायनिक खताचा वापर न करता सेंद्रिय खताचा वापर करून आपले आरोग्य हे सुरळीत ठेवलं पाहिजे. आणि रासायनिक खतामध्ये सुपर फॉस्फेट, युरिया, सुद्धा असे खूप सारे प्रकार येऊ शकतात. तसेच सेंद्रिय खतामध्ये कंपोस्ट खत, शेणखत, गांडूळ अशा प्रकारे खत येऊ शकतात. बहुत सारे लोग कम खर्च आजारी कमी होते. त्याच्याने माझी पण खराब होते. हां, म्हणजे सेंद्रिय खतामुळे हृदय आणि जलसंवर्धन करतात. ये प्रोजेक्ट का नाम है फिजियो इलेक्ट्रिक रोड. इस चार्ट में लिखा है एडवांटेजेस ऑफ फिजियो इलेक्ट्रिक रोड्स, मोर इफेक्ट, रिड्यूसेस ट्रैफिक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, फुल्ली ऑटोमेटिक, सेव्स इलेक्ट्रिसिटी, अवॉइड्स वेस्ट ऑफ टाइम. ये आप देख सकते हैं इन्होंने बनाया फिजियो इलेक्ट्रिक रोड. व्हाट इज़ फिजियो इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने डेफिनेशन बताया है. हाउ द प्रोजेक्ट वर्क्स. इस प्रोजेक्ट का नाम है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. एडवांसेस इन ट्रांसपोर्ट्स. आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर. नमस्कार सर. हाँ, एक मिनट. क्रॉप केयर सिस्टम. ऑल अबाउट वीट. तो आपका प्रोजेक्ट का नाम है क्रॉप केयर सिस्टम. ओके, थैंक यू. ये क्या वीट है क्या? वीट प्लांट. हाँ, तो आप हिंदी में बता सकते हैं. हाँ, बहुत सी बार ऐसा होता है जो फील्ड्स में जो सॉइल. पूरा पहले से बताओ प्रोजेक्ट का नाम. The name of our project is crop care system. So these are the devices we have used. This is the raindrop sensor here, and this is the display as you can see here, and this is the soil moisture sensor. ओके. And here is the brain of our project, Node MCU, which can be programmed. It is a programming module. हाँ हाँ, चिप है क्या वो? Yes. ओके. And instead of battery, we have used power bank.
because we didn't have sufficient voltage supply. Okay. And this is the water pump, and this is the motor type. Okay. तो ज़्यादातर क्या होता है जब सॉइल में मॉइस्चर लेवल कम या ज़्यादा होता है उससे क्रॉप्स अनहेल्दी और उनको हार्म पहुँचता है। तो जो रिक्वायर्ड लेवल रहता है मॉइस्चर का सॉइल में वो फार्मर्स अपने आँख से देखते तो बता नहीं सकते। तो उन्होंने डिवाइस बनाया जो कि सॉइल की मॉइस्चर और पीएच को कैलकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस और डिस्प्ले में शो होता है। तो अभी मॉइस्चर 34% है। अभी प्रोग्रामिंग हम लोग ने ऐसी की हाँ, मॉइस्चर 34% है, नो रेन और pH 4 है। If the moisture is below 50%, then the motor will automatically start and it will pour water from any source into the field. But eventually it will reach some level. After reaching the particular level which is required for the perfect growth of the crop, the motor will automatically stop. If in some case the rain comes, because of rain the moisture will automatically be okay. So this rain detection center will detect it and it will set signal to the not MCU and the motor will be on. For additional features, we have fitted a solar panel. Okay. It is up to the farmer if he can afford a bigger one, so he can control all this full device with the solar panel. For now, we are just controller LED. Okay. इसको वीट क्रॉप के लिए मॉइस्चर कितना रहना चाहिए? वीट अभी स्टेज के ऊपर होता है। हर एक क्रॉप का अलग अलग ग्रोथ स्टेज होता है। Okay. अभी हम लोग का टेलरिंग स्टेज पे है उसके साइज़ के हिसाब से अच्छा, ओके। 6 to 12 इंचेस। तो उसको कम से कम 70% चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम 50। सिर्फ ये वीट क्रॉप के लिए है ना? हाँ। और पीएच लेवल मॉइस्चर लेवल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ओके। तो अभी आप 37% या 32% मॉइस्चर है तो 4 पीएच है। हाँ। जैसे मॉइस्चर बढ़ेगा पीएच भी बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ओके अभी ओके। moisture 65% pH 6 मतलब मॉइस्चर इंक्रीज हो गए तो pH भी इंक्रीज होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? ओके। ये प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट सिटी। ओके। मैं बोलता हूँ, इन्होंने बनाया है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट। कौन एक्सप्लेन करेगा? हाँ, आप थोड़ा वीडियो बनाओ। Ranges. इस प्रोजेक्ट का नाम है बेनिफिट्स ऑफ हेल्थी डाइट। इस चार्ट में इन्होंने दिखाया है जंक फूड्स एंड गुड फूड, परसेंटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन अ बैलेंस डाइट, हेल्थी प्लेट, हेल्थी सोर्स ऑफ फूड, Ask anyway. ये है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वर्सेस लेमन जूस।
न्यूट्रिशन बेनिफिट्स, डाइट एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन 360। अच्छा ओके, ये है प्रोटोटाइप वेबसाइट। हाँ Maintaining the energy balance, preventing, managing diseases. Then we have this. Then okay, so we have compared diet versus junk food. Then we have like जब भी हम बाहर जाते हैं तभी हम लोग का एक्सेसिव पैसा खर्च हो जाता है जंक फूड में यूजुअली, तो फिर हेल्दी फूड प्रेफर करना चाहिए कि घर पे ही बन जाता है इजीली एंड इट्स हेल्दी फॉर आवर हेल्थ. So next we have given an example of a diet like 7 days of week. हम लोग ने एक प्रॉपर डाइट बनाया है, वीकली प्लान है. हाँ. So you can implement this in your daily routine or you can just customize it. Then this is a to-do list. सुबह का, afternoon और night. Okay, so you can just make a list of yours and do a to-do list. Then here. Here we have made a presentation on this. So we have given some like potassium कम थोड़ा भी कम हो गया अपने डाइट में तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और बहुत ही ज़्यादा हो गया तो भी है. सोडियम भी बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो लीड टू हाई ब्लड प्रेशर, और अगर कम हुआ तो फिर कम हो गए तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो गए तो भी प्रॉब्लम है. एकदम प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए इस चीज़ों में. ओके. और फिर ये एक है कि अपने इसमें प्रॉपर ये चाहिए, ये सब माई प्लान फॉर ओल्डर अडल्ट्स. हाँ. Yes. Then you can see as लोग अभी जो है वो अभी 2019 से इम्प्लीमेंट करेगी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने का, क्योंकि 2019 के बाद ही कोविड आया था. तो फिर हम लोग ने उसके वजह से एक वेबसाइट भी बनाई कि वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे पूछ सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो अपने आप को. यहाँ पे आप अपना इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो, और फिर वाटर का बेनिफिट सिखाया है, और आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो नीचे से. लाइक यू कैन लीव अ मैसेज हियर एंड वी विल आंसर योर मैसेजेस. Okay. Without any charge? Yes. Free of cost? Okay, very good. So then, Let's show me that food pyramid. yes. So this is a diet pyramid. As you can see, here it's all included: vegetables, dairy products, then fats. Fats are less because fats can be unhealthy, but in a proper quantity, it's very healthy. Then you can see with diet we also have to exercise. As it is a main role in weight loss. Benefits of exercise. Okay. Yes. Myths and facts. Myths and facts. So usually हम लोग को बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहते हैं कि अभी हम लोग ने ब्रेड प्रोडक्ट्स मतलब ब्रेड, पास्ता, राइस ज़्यादा खा ले तो ऐसा लगता है कि हम लोग वेट गेन ज़्यादा कर रहे हैं. पर एक प्रॉपर क्वांटिटी में और मल्टीग्रेन खाए, मतलब जिसमें फाइबर्स रहते हैं, आयंस रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं हम लोग के लिए. फिर नेक्स्ट है कि हम लोग को अगर वेट लॉस करना है तो हम लोग फेवरेट जो फूड रहता है वो छोड़ देते हैं. पर यूजुअली हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा क्वांटिटी में खा ही सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक ही दिन में सब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. तो दिस इज ओके. ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है.
This is basically a radar system which detects the missiles which are coming in the range of 4 to 10 kilometers. This is the iron domes. When any missiles detect in this, the iron domes get activated and it destroys 70% of the missiles because it's 70% activated and the alarm gets transmitted to our soldiers so they can be activated because soldiers cannot be activated for 24/7. इसराइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम है सोलार स्टोव। ये है सोलार पैनल, सोलार एनर्जी, बैटरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक गैस स्टोव को ही इन्होंने सोलार स्टोव बनाया है। सोलार स्टोव, हीट एनर्जी। किचन की बाहरी दीवार पर लगाना है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप गिरता है वहाँ पर लगाना है। तो सूरज जो किरण मिलेगा उसके ऊपर लगने से जो इलेक्ट्रिक तैयार होगा। हमने यहाँ पर आउटपुट का वायर लगाया जिसको बैटरी से कनेक्ट किया है। बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक पावर जो है स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हमने यहाँ पर दूसरा आउटपुट लगाया दोनों तरफ, जिससे जो इलेक्ट्रिक पावर है इसके अंदर हीट होकर जो ये निक्रम कॉइल है इसके अंदर जाकर इसको ये हीट होकर हम इसको खाना बनाते। क्या है प्रोजेक्ट का नाम क्या है? Our project name is Integrated Fabric System. That कौन is सा? Integrated Fabric System. इंटीग्रेटेड फैब्रिक सिस्टम। ओके, फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। Has been subdivided into 5 groups. All the groups has been. नहीं, आप चालू करिए। Now, my friend Tanushi will explain this. So integrated farming is divided into 5 parts, that is dairy unit, biogas, crop unit, pisciculture and vermicomposting. So before we start, let's see what are the problems. Present day agriculture. Let us see what are the problems of a present day agriculture of the farmer. Let us see. Decline in a factor productivity. Static or decline in a food production. Increasing malnutrition. Shrinkage in net cultivable area. Fifth, increasing environmental pollution. Depleting groundwater table. Increasing cost of production. Low farm income. Increasing unemployment. Decline in agriculture growth rate. Now, let us see why integrated farming system, that is IFS, is needed to the farmer. Let us see. For reducing the risk due to the biotic and abiotic stresses. Second one, high input cost. Third one, for meeting the rising needs of food, feed, fiber, fuel and fertilizer. Fourth one, nutritional requirement for family. Increased demand of soil nutrients for increasing the income of employment. Now, let us discuss dairy unit, vermicompost, crops as well as the biogas. So first let's begin with dairy unit. Dairy production provides non-marketed economic benefits. In dairy unit, different domestic animals like cow, hens, etc. are taken care and dairy products such as milk, butter, etc. are obtained from them. The next part is biogas. Biogas is gaseous renewable energy source which can be used in our daily life as well. And it is not harmful for the environment like other harmful gases present in them. This gas is produced from raw material like food waste, sewage, manure, etc. The next part is crop unit. As you can see, it is divided into 3 parts, that is floriculture, horticulture and crops. In floriculture, various flowers are grown. In horticulture, different fruits and crops, some grains and vegetables. The last part is vermicomposting. Vermicomposting is making organic fertilizer from organic waste like the dead bodies of earthworms and organic waste that is the waste obtained from fruits and vegetables. Worms play an important role in vermicomposting. So now let's see the cycle of integrated farming and pisciculture. Now, let us understand what is the cycle of the integrated farming system, that is IFS and the pisciculture.
Now all the cycle that start with dairy unit. From dairy unit, which kind of product we get? We get milk, cow dung, as well as the cow unit. So milk plays an important role for cooking as well as making sweets, butter, etc. And the waste product which is coming from the dairy unit, that is cow dung as well as the cow unit. Cow dung is basically used for making biogas and the cow unit is used for making Ayurvedic medicines. Now, let's see biogas. Biogas is used for the household purpose for any other gaseous thing like flammable gas. Now let us understand. After making gas, it will come on a home. Now, the waste product, which is all the waste product, will come on a vermicompost fertilizer and it will be mixed with the vegetable waste. Now, let us know what is vermicompost fertilizer, and the main factor of a vermicompost fertilizer is earthworms. As we know that earthworm is a favorable food for the health. Favorable food for the health. After excreting the earthworm, it will come to the pond. It will come to the pond that it is the food of the hens, cocks, etc. and the other poultry system. Now, this soil is known as rich fertile soil, which comes in the crop area. Now, let us see crop unit. Now, crop unit has also been subdivided into 3 groups. That is floriculture, horticulture as well as the crops. Now, floriculture means various flowers like rose, sunflower has been grown in a limited area. That is known as floriculture. Now, horticulture, various fruits, vegetables has been described in a limited area. That is known as horticulture. Now, one and the last thing, that is the crops, which have been like other grains, etc. has been grown. That is known as crops. Thank you. Thank you very much. Very good explanation. All the best. इस प्रोजेक्ट का नाम है इसराइल डिफेंस सिस्टम, दैट इज़ आयरन डोम. एक मिनट. Good morning, good afternoon. So this is the Iron Dome, this is a missile and this is the headquarters. This is the military area where people live and this is the radar system. This radar system detects the missiles which are upcoming and any of the missiles coming in a range of 70 to 100 kilometers, it detects it and sends a signal to the Iron Dome and the Iron Dome gets activated. As the Iron Dome gets activated, there is a signal around to the military people that there is an attack, so they get activated because soldiers cannot be activated for 24/7. So there is a need of this project in our country. So our country also should have such a defense system. Okay. और कुछ बताना चाहते हो? बस इतना ही. Okay. Because the project was based on Iron Dome, so many of the things are on Iron Dome. Okay. Very good. Thank you. उसकी मदद से हमने सोलर को बनाया है. सोलर के लिए सोलर पैनल और बैटरी की जरूरत रहती है. सोलर पैनल के लिए जो सोलर पैनल है हमें घर के बाहर की दीवार पर लगाना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप गिरता है, जिससे जो धूप गिरेगा उसके ऊपर किरण गिरेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार होगा. जो इलेक्ट्रिसिटी है जो आउटपुट बैटरी के अंदर है, बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगा. स्टोर होने के बाद जो हमारे आउटपुट में आ रहा है जो यहाँ पर 15 मिनट में गैस करेगा, हमने उसको निकाल कर यहाँ पर निक्रोम को कॉइल लगाया. निक्रोम को कॉइल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को लेकर हीट कर कर इसके ऊपर हम खाना पका सकते हैं. मटेरियल भी चाहिए ना कोई माइक्रोन के ऊपर. नहीं, ऐसे ही इस प्रोजेक्ट का नाम है हाइब्रिड क्लॉथिंग. जो हमारा पैटर्न क्लोथिंग है उसका वर्किंग ये पेल्टिन मॉड्यूल पे बेस्ड है. उसका वर्किंग ये पेल्टिन मॉड्यूल पे बेस्ड है. किसके बेस्ड है? पेल्टिन मॉड्यूल पे बेस्ड है. पेंटियम मॉडल. पेल्टियर मॉड्यूल. ओके. एक्चुअली ये क्लॉथ उन्होंने ऐसा बनाया है कि ये टेम्परेचर एडजस्टेबल है. यानी बाहर का अगर टेम्परेचर ज़्यादा गर्म है तो आपको ठंडा करेगा, और बाहर का टेम्परेचर ठंडा है तो आपको गर्म करेगा. तो इसमें जो ये मॉड्यूल दिया है ये मॉड्यूल आगे कर दो तो मौसम के हिसाब से गर्म और ठंडा हो जाएगा. ये बाहर गर्म रहता है तो अंदर ठंड रखेगा, बाहर ठंड रहता है तो अंदर गर्म रखेगा. हाँ, ये मॉड्यूल हमने यहाँ फिक्स किया है. हाँ हाँ. ये मॉड्यूल हमने यहाँ फिक्स किया है.
ये मॉड्यूल हम लोगों ने यहाँ फिक्स किया है ठीक है। और इसको आपको जैसा चाहिए आप ये नॉब्स की साइड आपकी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर टेम्परेचर चाहिए यानी ज़्यादा गर्म कम गर्म आपको चाहिए आप ये जगह पे ये यूज़ करके आप बता सकते हो। अच्छा यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ हम लोगों ने एक ग्लव्स बनाया है। एक ग्लव्स के साथ हम ये सेम मॉड्यूल यूज़ करके पैंट या ब्लैंकेट कुछ भी बना सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले आर्मी के लिए बनाया था, फिर आर्मी के बाद अभी ये कोई भी यूज़ कर सकता है। हम लोगों ने इसको इतना एक्सेसिबल बनाया। तो ज़्यादातर ये आर्मी लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाए जो हिमालय और कश्मीर में रहते हैं। और ये ग्लव्स को हम ऐसा हीट पैक यूज़ करते हैं, यानी कि चोट वोट लग गया तो वहाँ अगर कोई आइस पैक या कोई गर्म पैक रखने के लिए उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या? अच्छा ट्राई करके देखो। आराम से हाँ। हाँ शॉक वगैरह नहीं लगेगा ना? वो सब इंसुलेशन में बना है। हाँ हाँ अभी गरम लग रहा है अभी। ये ऐसा होता जाएगा गरम है हाँ गरम है। तो ऐसा ही होता जाएगा। अच्छा ठंडा होता है सोचा ये से गर्म करता है ना ये वाला। हाँ गर्म। ये वाला जो क्लॉथ है ठंडा भी कर सकते हैं बट यूजुअली लोग क्या गर्मी के लिए वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं तो इसलिए हम लोगों ने ये किया। अच्छा अच्छा ओके। कूलिंग के लिए हाथ पावर सप्लाई कैसा रहेगा इसका? बैटरी ये बैटरी से बैटरी। ये बैटरी आप पॉकेट वगैरह में और रख ये सकते हैं। रिचार्जेबल भी है। रिचार्जेबल रिचार्जेबल बैटरी। क्या है आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरीश है। ये बनाया है इसने। किसने बनाया? क्या है आपका नाम? चेतन। कोई आप जूनियर कॉलेज में पढ़ते हो या हाई स्कूल में? जूनियर कॉलेज ओके कौन सा स्टैंडर्ड? 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड। ओके सर। एक मिनट। कौन सा मून सरफेस है ये? चार्जिंग हाथ से रख के लेकिन नहीं सर स्टक हो गया और आगे अभी हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं ना तो तीनों व्हील स्टक हो गया। बताओ। आगे नहीं मून सरफेस। चार्जिंग हाँ लगाया था पर बंद कर दिया होगा एक। मैं ऊपर से नहीं आया, ऊपर से देखो
लेके आओ। ट्रांसपोर्टेशन एंड लैंड यूज। एक मिनट, एक्सप्लेन करो। करो ना, थोड़ा जोर से। हाँ, इसमें तीन चार थोड़ा टॉपिक जोर से। हमारे, 3-4 टॉपिक हमारे। इसमें हाँ, मतलब जो कोई एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करो। इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है जो अपना इलेक्ट्रिक चलता है और इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता है। इस वाले स्पीड ब्रेकर से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होएगा। अच्छा। जितनी बार भी इसके ऊपर से व्हीकल जाएगा उतनी बार मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। और दूसरा टॉपिक कौन सा है? और ये दूसरा टॉपिक ये है कि ऑटोमेटिक स्पीड ब्रेकर, तो जो व्हीकल रहता है रॉन्ग वे से चलाते हैं व्हीकल, ये सेंसर उसको सेंस करके ऑटोमेटिकली स्पीड ब्रेकर ऑन होगा। अच्छा जिससे अच्छा, वो रॉन्ग में vehicle- चलाता है उसको। जो रॉन्ग में चलाते हैं। हाँ हाँ। और एक ये है कि मतलब जो सिग्नल ग्रीन रहता है तो ऑन रहता है गाड़ी, हाँ। तो जो रेड होने पे भी कोई कोई गाड़ी ऑन रखता है सिग्नल पे, तो इससे क्या होएगा कि सिग्नल रेड होने पे गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। किसी का भी गाड़ी? तो हाँ, मतलब जितना भी सिग्नल पे गाड़ी खड़ा रहेगा ना, वो सेंसर की मदद से ऑफ हो जाएगा। अगर गाड़ी में सेंसर नहीं है तो सेंसर वो रहेगा ही। बिठाना पड़ेगा। करना। अच्छा। उससे अगर ऐसा चल रहेगा तो हमारा नाहौर स्टेशन भी सी रोड स्टेशन बन सकता है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अच्छा, पॉपुलेशन एजुकेशन। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, हिंदी। हाँ चलिए। So this is our Earth, which currently feels very, very, very burdened because of heavy population, high population explosion, which is at world level. But first and foremost, we will talk about India. As you can see, India's approximately world population is 142.86 crores, which is very high, and the land available is 3.287 million kilometers, which is very high, and we cannot accommodate all the peoples at very less land. So, we have prepared a model in which we explains about causes and effects of the high population. So, the first cause of this is early marriages, as the India's Indians have the routine Indians practice that legalized early marriage. 18 years. It is 18 years, which is very low. The next cause is illiteracy. People in rural areas, people are not aware and well educated about what are the side effects of having such a high population. The next is poverty. Poor people have this mentality of having many children can earn their house or can earn their livelihood. The next is joint family system. We are not against the joint family system, but we are here explaining that nuclear family is a healthy family. You can say it that like. The next are effects of the high population. As you can see, there are very less vacancies, jobs available. So it causes unemployment problem. And to earn their livelihood, many people want to be entrepreneur, which for that they open factories, which causes again pollution. The government is providing about transportation facilities, hospital facilities, ration facilities to accommodate, to deprive the people. But due to having such a high population, we cannot accommodate all the people deprived from the facilities. So we have to control the population. Nice. Very nice. नेटवर्क टावर्स भी तो बहुत हार्मफुल होते हैं बर्ड्स के लिए एंड ऑल। हाँ। तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और जैसे कि बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, बर्ड्स के लिए तो
इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, हाँ. और जिसको मूवी बन चुकी है 2.2, जिससे बहुत लोगों ने समझा भी, पर बहुत लोगों ने नहीं भी समझा, तभी भी हम समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं. चाली को समझाना. और उसके और भी इफेक्ट जैसे कि होते हैं जो रेडिएशन इफेक्ट्स हैं. अच्छा. वो हम हर अलग अलग चीज़ों में दिखा रहे हैं. प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी वो हार्मफुल है. हाँ, हार्मफुल बच्चों के लिए. बच्चों के लिए भी. और जैसे स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडीज पे. एंड Skin disease हो सकता है. गेम है हमारे पास जिसमें प्ले कर सकते हैं. स्कूलों के ऊपर भी अभी आजकल चालू हो रहे हैं बच्चे, और मतलब देख के यूज़ कर रहे हैं, और उनके लिए बहुत हार्मफुल है. इसके लिए हमने स्कूल के ऊपर भी दिखाया है. और हॉस्पिटल जहाँ पर बीमारी ठीक करने जाते हैं, वहाँ पर से भी बीमार हो जाए तो अच्छा नहीं होता. इसके लिए हम बताना चाहते हैं कि यहाँ से हटा दें. सभी जगह है, स्कूल, हॉस्पिटल और हाउसिंग सोसाइटी. नहीं, इसका इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. अब मैं बस फोन नहीं लेता, आपको इफेक्ट पूरा दिखाते हैं. कोई बात नहीं, ठीक है. रेडिएशन और हार्मफुल. हाँ. अभी आपका नंबर आया? नहीं मैडम, ओ एकदम समय कम था मैडम, उसमें बहुत टाइम कम दिया. वर्ली पेंटिंग के बारे में है ना मैडम? ये भी आपका ही है? लोकसंख्या शिक्षण म्हणजे राष्ट्रोन्नती लक्षण. आप बताएंगे? बताओ. सांगा. ही दोन स्थितीमध्ये वृत्ती आहे. एक म्हणजे लोकसंख्या कमी असते, त्यामुळे काय होते इथे स्वच्छता राहते आणि जी पृथ्वी आहे ती हिरवीगार राहते. ही पृथ्वी अस्वच्छ आहे कारण इथे लोकसंख्या जास्त आहे. मग त्याच्यामुळे काय तोटे होतात किंवा दुष्परिणाम काय होतात, तर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते कारण पैसे कमी पडतात आणि मग त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते. मग उपासमार होते कारण अन्नधान्याचा तुटवडा होतो. त्याप्रमाणे राहायला जागा होण्यासाठी वृक्षतोड केली जाते. भ्रष्टाचार वाढतो. आणि त्याच्यावर उपाय काय, तर ह्या पृथ्वीवर ते उपाय सांगितलेले आहेत की आपण वनीकरण केले पाहिजे, म्हणजे झाडं लावली पाहिजे. आणि आपलं सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे प्लास्टिकची समस्या. तसेच जलसंधारण केले पाहिजे कारण लोकसंख्येमुळे प्रदूषित जल येत आहे आपल्याला. मग आपण ते मातीत साठवले पाहिजे. त्याच्यानंतर आधुनिक सेंद्रिय शेती. इथे जो अन्नधान्याचा तुटवडा पडतोय, मग त्यासाठी सेंद्रिय शेती आपण केली पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ही की लोकसंख्येमुळे काय होतं, तर हे सगळे तोटे होतात आणि त्याच्यावरचे उपाय ह्या फुलांवर दिलेले आहेत. म्हणजे जे फुलपाखरू आहे हे कुपोषणावर आहे. मग आता त्याला गरज कशाची आहे, तर सकस आहाराची गरज आहे. मग ते उडत जाणार सकस आहाराकडे. मग जागतिक तापमान वाढ हे कशामुळे होतं की पर्यावरणाच्या समस्या उद्भवतात. मग ते फुलपाखरू जाईल पर्यावरण रक्षणाकडे. मग लोकसंख्या वाढते. मग काय केलं पाहिजे, तर कुटुंब नियोजन. निरक्षरता वाढते. मग प्रौढ शिक्षण. मग त्याप्रमाणे दुसरी गोष्ट हे आपण केलेले उपाय आहेत, हे आपण करतोय. मग सरकार आपल्यासाठी काय करतंय, मग त्याचा आपण फायदा घेतला पाहिजे. मग हे भारतात उगवलेलं सरकारच्या योजनांचं झाड आहे. ते आंब्यांच्या स्वरूपात आहे. म्हणजे आता समजा आपण हा एक आंबा भरला, तर मग त्याच्यावर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, तसंच इथे सुद्धा आहे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. मस्त केलं, छान. असं. आणि त्यानंतर दुसरं हे आहे
लोकसंख्येमुळे होणारे दुष्परिणाम आणि त्याच्यावरचे उपाय. हिरवी जी सोंगटी आहे हे सूचित करते की हे उपाय आहेत आणि जी तांबडी सोंगटी ती सूचित करते की हे दुष्परिणाम आहेत. त्याप्रमाणे ही सापशिडी आहे. जर सापशिडीची सोंगटी जर 38 या क्रमांकावर गेली तर तिला क्षयरोग हा साप खाऊन टाकेल. मग त्याच्यावर उपाय काय, तर रोगप्रतिबंधक लस टोचू. मग आपण काय, जर आपली सोंगटी 6वर गेली तर आपण इथे 32वर येणार. मग त्याप्रमाणे हा खेळ आहे. दुसरी गोष्ट जी म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्येकडून महिला सक्षमीकरणाकडे. ही मुलीची पावलं आहेत. मग ही मुलीची पावलं काय इंडिकेट करतायत हे आपण आज बघूया. की माझा अपमान करू नका आणि मला गर्भात असतानाच मारू नका. हा लोगो आहे. मग मी स्टार्ट करते जिजामातांपासून की त्यांनी काय केलं तर शिवबाराजांच्या मनात प्रेरणा निर्माण केली स्वराज्य घडवण्यासाठी आणि जे काही अत्याचार होत होते महिलांवर त्याविरुद्ध विरोध उठवण्याची, आवाज उठवण्याची. त्याप्रमाणे सावित्रीबाई फुले की मी सुद्धा त्यांच्यामुळे तिथे उपस्थित आहे की त्यांनी शिक्षण आमच्यासाठी केलं. त्या काळात स्त्री शिक्षणासाठी त्या झटल्या त्यांच्या पतीच्या मदतीसह. त्यानंतर सगळ्या क्षेत्रात आपल्या महिला पुढे आहेत. मग त्याची काही उदाहरणं जसं की गायिका लता मंगेशकर, आपल्या करंट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, धावपट्टू पी.टी. उषा, अंतराळवीर कल्पना चावला, लेखिका सुधा मूर्ती की ज्या ओनर आहेत इन्फोसिस. त्यानंतर हिच्याबद्दल मला स्वतःला आवडते कारण तिने अपंग महिला असून ती पहिली महिला की जी अपंग होऊन तिने माउंट एव्हरेस्ट सर केला आणि तो यशस्वीपणे सर केला. खूप छान, खूप छान. थँक्यू. ये भी प्रोजेक्ट है पॉपुलेशन एजुकेशन. ये 3 बता दो.
अरे क्या मैडम ऑफिस में तो चालू तो बोलिए ये प्रोजेक्ट का नाम है लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट रूरल लाइफस्टाइल कैसा रहता है इन्होंने दिखाया है। रूरल लाइफस्टाइल है और इस तरफ बनाया है अर्बन लाइफस्टाइल, इंडस्ट्रीज, फार्मेसी, स्कूल, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल एरिया, डिफॉरेस्टेशन। ये जो प्रोजेक्ट है आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट में आता है ये। और ये प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट, ग्रीन हाउस, क्या है प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सॉइल मॉइस्चर सेंसर। हाँ एक मिनट, मैं चार्ट लेता हूँ। सॉइल मॉइस्चर सेंसर, हाँ बताओ। अच्छा, गीले में डालेंगे ना तो इसका पानी आना बंद हो जाएगा। सो मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड है, पानी देना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, और हमने एक लाइट सेंसर भी बनाया। कौन सा? लाइट सेंसर। अच्छा, जब वो दिन में रहेगी तो पानी आएगा, और रात रहेगी तो पानी नहीं आएगा। अच्छा रात को दिन, प्रकाश नहीं रहता है। हाँ हाँ, तो दिन में पेड़ पौधे को पानी मिलेगा, रात में पानी रात को बंद। जब सूखी रहेगी तो पानी नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ ये दिन है और रात में गए तो पानी बंद हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर डिपेंड है, अंधेरा हो जाना है। अच्छा प्रोजेक्ट है, थैंक यू। इस प्रोजेक्ट का नाम है इसराइल डिफेंस सिस्टम, दैट इज़ आयरन डोम। एक मिनट, Good morning, good afternoon. So this is the Iron Dome, this is a missile, and this is the headquarters. This is the military area where the people live, and this is the radar system. This radar system detects the missiles which are upcoming, and any of the missiles coming in the range of 70 to 100 kilometers, it detects it and sends a signal to the Iron Dome, and the Iron Dome gets activated. As the Iron Dome gets activated, there is a signal around to the military people that there is an attack, so they get activated because soldiers cannot be activated for 24/7. So there is a need of this project in our country. so our country also should have such a defense system, okay? और कुछ बताना चाहते हो? बस इतना ही, ओके। It was a
project was based on iron dome, so many of the things are on iron dome. Okay, very good. Thank you. ये जो सामने वाला प्रोजेक्ट है प्लास्टिक पायरोलिसिस, इस मेथड से हम प्लास्टिक के वजह से होने वाले प्लास्टिक पोल्यूशन कम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने, प्लास्टिक पायरोलिसिस का है। किसके ऊपर बनाया है प्रोजेक्ट? ये रासायनिक खेती और ऑर्गेनिक खेती के केमिकल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। 1 मिनट में चार्ट का वीडियो लेता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट्स है ना इसमें। ओके, और ये केमिकल फार्मिंग का नुकसान। जो इस तरफ प्रोजेक्ट के दो तरफ बनाया आपने ना, इस तरफ है केमिकल फार्मिंग और उस तरफ है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, नाम बताओ। और मेरा नाम स्वाति रावल है, मैं नवभारत नूतन विद्यालय की बच्ची हूँ। ठीक है। ये खेती में यूरिया और फेसिफेनेट जैसे दवाइयों का यूज़ किया जाता है। कीटकों को मारने के लिए कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये खेती के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो जब हम लोग खाते तब उससे हमें बीमारियाँ होती हैं। अच्छा, हाँ। कि कैंसर है, फिर अस्थमा जैसे रोग हैं, इसलिए हमें ऑर्गेनिक खेती यूज़ करनी चाहिए, रासायनिक खेती नहीं यूज़ करनी चाहिए। केमिकल से हमें ही नुकसान होते हैं। अच्छा। अभी वो उधर का यहाँ पर यूरिया से पानी में मिक्स करके फटाफट कर सकते हैं ना। यहाँ पे ना टाइम लगता है बनाने के लिए, और गाय के गोबर से बना दें तो और थोड़ा टाइम लगता है। तो सब लोग क्या करते हैं कि ये यूज़ करते हैं, और सब लोग ये 75% यूज़ करते हैं और 25 ये यूज़ करते हैं, पर ज़्यादा बेनिफिट इसमें है और उसमें नहीं है। उसमें नुकसान ज़्यादा है। हाँ, उसमें बेनिफिट इधर नुकसान कम और बेनिफिट ज़्यादा है, उधर नुकसान ज़्यादा। गाँव के ही लोग खाते हैं, ये शहर शेयर। के लोग। ओके, आपका नाम क्या है? कृपाली मकवान। हाँ, कृपाली मकवान। ओके, थैंक यू। दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये सामने वाला प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी के ऊपर इन्होंने बनाया है, और एक तरफ है गांव का माहौल। आपका है क्या प्रोजेक्ट? नहीं है। स्मार्ट सिटी के बारे में ये प्रोजेक्ट है एक तरफ, और दूसरी तरफ है गांव का प्रोजेक्ट। ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। अर्थक्वेक डिटेक्टर है। जब भी अर्थक्वेक आएगा ना, तब सिटी में लोगों को पहले सूचना देने के लिए अलार्म दिया जाएगा। अच्छा, क्या सेंसर है क्या सर? हाँ, हाँ, तो अर्थक्वेक का अलार्म देगा ये। हाँ। और ये फायर अलार्म है। हाँ हाँ। जब भी इसके कांटेक्ट में फायर आएगी ना, तब ये सेंस करके बीप कर दिया है। हाँ, अच्छा, ओके। और हाँ हाँ, इससे ना विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करेगा। विंड मिल है, ओके। ओह, वेरी गुड। और इसमें ना बारिश का पानी स्टोर करके रखेंगे हम, और ये पानी इस टैंक में जाएगा, और इस पाइप के द्वारा इस खेतों को दिया जाएगा। इस पाइप में होल से मतलब थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहेगा खेतों में, इससे ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं बचा, हाँ, वेस्ट नहीं होगा, पानी का बचत हो जाएगा। ओके, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है ना? अच्छा, वो है। आपका नाम क्या है? आयुष। और आपका नाम? आदित्य। हाँ, ओके, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ओके, थैंक यू। इस प्रोजेक्ट का नाम है समाजासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, साइंस फॉर सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया है। आप
देख सकते हैं इस चार्ट में। ये है ड्रिप इरिगेशन के ऊपर उन्होंने बनाया है ठिबक सिंचन। ड्रिप इरिगेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठिबक सिंचन पद्धति जो मराठी में बोलते हैं। और इधर है नवीन पद्धति। वांग्याच्या शेतीची माहिती, ब्रिंजल फार्मिंग के ऊपर इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। ऐसा एक बॉटल में पानी डाला है और इसमें डोरी है, डोरी से रस्सी से क्या है पानी का ड्रिप, हाँ देख सकते हैं पानी का ड्रिप। हाँ। हमारी इस प्रकार का नाटकीय षड्यंत्र अर्थात नए सपड़ी सिस्टम है। हम कृषि सुरक्षा इससे कर सकते हैं, इससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय कृषि प्रधान देश है। कृषि करने हेतु पहले जोताई, बुआई, खाद और रोड डालना आदि कार्य करने पड़ते हैं। इसमें बहुत मेहनत तथा समय लगता है, परंतु जानवरों के कारण ये सारी मेहनत तथा समय बर्बाद हो जाती है। किसानी समस्या के समाधान हेतु खेत के चारों ओर कटेली तार लगाते हैं। कटेली तार इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए हमने यह संरक्षण अर्थात ये सफाई सिस्टम बनाया। तो हमारे लेजर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। हाँ। हमारे मित्र निवेश शर्मा इस प्रकल्प की कार्य पद्धति के बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है। हमने इस प्रकल्प में चारों कोनों पर 4 प्लेन मिरर लगाया, समतल तो खेत के चारों तरफ 4 कॉर्नर को 4 प्लेन मिरर लगाया। हाँ। और रिफ्लेक्शन, लेज़र लाइट को रिफ्लेक्शन किया है। जैसा ही कोई जानवर, कोई आदमी बीच में आ जाता है तो लेज़र बीम कट हो जाता है और उससे क्या होता है, अलार्म बजता है ना। अच्छा, ओके। हाँ हाँ, और एक बार दिखाओ। हाँ, अच्छा मैं करके देख रहा हूँ, 1 मिनट। करेगा तो थोड़ा इसका बैटरी डाउन हो जाए। हाँ, अच्छा है, ठीक है, मतलब चीप एंड बेस्ट है। हाँ। थैंक यू वेरी मच।